گوری کوی کی اپنی ساس سے تو کبھی نہ بنتی تھی۔ اگر اس کا پتی کالو کوا بیچ میں آتا تو اس کی پتنی اسے بھی نہ چھوڑتی۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر میری ماں کے بارے میں ایک شبد بھی بولا تو میں کیا کر لو گے تم؟ میں بولوں گی، یہ ساس نہیں، یہ چڑیل ہے، یہ میرے ساتھ ساتھ کسی دن تمہیں بھی کھا جائے گی۔ میں تو پچھتا رہی ہوں اس دن کو جب میں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائی تھی۔ اونچے اونچے پریواروں سے رشتے آ رہے تھے میرے بیٹے کے لیے، مگر میں نے نیکی کی تم غریب پر جو تمہیں پسند کیا۔ مجھے سب پتا ہے، اور اس نکھٹو سے میرے سوا کوئی شادی کرنے والی تھی بھی نہیں۔ مجھے نکھٹو کہا؟ میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ پھر ان تینوں میں لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ پڑوسی کبوتر اور چڑیا ایسے موقع پر اکثر آ کر انہیں چھڑایا کرتے تھے۔ کبوتر بھیا چلو، لگتا ہے پھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ ان کا تو روز کا کام ہے، مگر آج مجھے کام کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہا ہے۔ پھر چڑیا اور کبوتر گوری کے گھر جاتے ہیں۔ چھوڑو چھوڑو، کیا مار دو گے ایک دوسرے کو؟ اس نے آج مجھے نکھٹو کہا۔ میں کہوں گی نکھٹو نکھٹو، آوارہ لچا لفنگا۔ پڑوسیوں دیکھ لو، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ چلو گوری، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ میں ڈر کر کہیں جانے والی نہیں ہوں۔ چلو گوری بہن چلو، میں آپ کو مٹھائی دیتی ہوں کھانے کو۔ پھر چڑیا اور کبوتر گوری کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر تم میں دم ہو تو بہو کبھی میرے آگے نہ بولے، تم نے ہی اسے سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے۔ ماں، تمہارے سامنے ہی ہوا ہے سب، دیکھا نہیں؟ وہ تو لاٹھی لے کر مجھے بھی مارنے بھاگتی ہے۔ یہ لو گوری، مٹھائی کھاؤ۔ پھر گوری کوی مٹھائی کھا کر تھوڑا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گوری بہن، میرے پاس ایک اپائے ہے جس سے آپ کی ساس آپ سے پیار کرنے لگے گی اور ساری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کیا مار دوں اس چڑیل کو؟ نہیں، آپ ہمارے ساتھ الو بابا کے پاس چلیں، اس کے پاس ایک ایسا تعویذ ہے جس سے ساس کبھی لڑائی نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہے تو چلو، میں ابھی تمہارے ساتھ جاتی ہوں۔ پھر چڑیا اور کبوتر گوری کو ساتھ لے کر الو بابا کی طرف جاتے ہیں۔ الو بابا، یہ گوری کوی ہے، اسے ساس والا تعویذ دے دیں۔ وہ والا تعویذ جس سے ساس بہو کی لڑائی ختم ہوتی ہے۔ ہاں ہاں الو بابا جی، وہی تعویذ۔ الو بابا جی بوڑھی ہو گئی ہے مگر بولتی جوانوں کی طرح ہے، میری ماں کو گالیاں دیتی ہے، مجھے جو بھی کہہ لے، مگر میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تم سے پیار بھی کرے گی اور گھر کی چابیاں بھی دے دے گی۔ یہ تعویذ تم لے جاؤ اور جب تمہاری ساس بولنا شروع کرے تو اسے اپنی چونچ میں لے لینا اور زور سے دبائے رکھنا۔ چونچ میں ہی لینا ہے یا کھانا بھی ہے؟ نہیں، کیول چونچ میں لے کر دبائے رکھنا ہے۔ جتنے زور سے دباؤ گی اتنا ہی جلدی تمہاری ساس تم سے پیار کرنے لگے گی۔ پھر کیا تھا، دوسرے ہی دن لڑائی پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ کالو تو گھر میں نہ تھا۔ جہاں میں نے بھوجن رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ کھا لیا ہے میں نے، کیا بھوکی رہتی میں؟ اپنی ماں کی طرح تمہارا بھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ… پھر گوری کوی کو الو بابا کے تعویذ کا خیال آتا ہے اور وہ جلدی سے وہ تعویذ نکال کر چونچ میں رکھ کر دبانے لگتی ہے۔
बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो गई हो? उस दिन की मार क्या भूल गई हो? आ लेने दो मेरे कालू को। गोरी की सास ऐसे बोले जा रही थी, मगर गोरी तो केवल चोंच को दबाए हुए थी। वो जोर से तावीज को दबा रही थी और फिर थोड़ी देर बाद उसकी सास चुप हो जाती है और नदी पर चली जाती है। भाग गई, मुझसे डर कर भाग गई। तावीज ने काम अच्छा किया है। फिर जब भी गोरी और उसकी सास में लड़ाई शुरू होती तो गोरी जल्दी से वो उल्लू बाबा का तावीज निकाल कर अपनी चोंच में ले लेती। उसकी सास बोलती रहती, तुम बहुत शैतान हो, पहले बोलती हो फिर बाद में मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देती हो। फिर ऐसे उसकी सास भी चुप कर जाती है और बाद में गोरी अपनी चोंच से तावीज निकाल कर हंसने लगती और समझती कि उसकी सास हार गई है। अभी 10 दिन ही हुए थे कि गोरी की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा कालू, मेरी बहू अब सुधर गई है, मेरे सामने जबान भी नहीं चलाती और मुझे कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करती। मैं ही गलत थी, मैं अपनी बहू से अब कभी लड़ाई नहीं करूँगी। माँ जी, क्या? हाँ बेटा। फिर गोरी की सास अपनी बहू के पास जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, ये लो घर की चाबियाँ और मेरे संदूक में एक रानी हार है, वो भी तुम ले लो। मैं ही बुरी थी, मैं फिर कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी। ये सब देखकर गोरी तो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास को गले लगा लेती है। चिड़िया, उल्लू बाबा का तावीज बहुत काम का है। मेरी सास ने मुझे सच में घर की चाबियां भी दे दी और अपना रानी हार भी मुझे दिया है। ये सुनकर कबूतर और चिड़िया हंसने लग जाते हैं, मगर गोरी ये न जानती थी कि वो तावीज तो केवल एक खाली कागज का टुकड़ा था। जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी चिकन बर्गर बेचा करते थे। उनके बर्गर तो बिक जाते थे, मगर उन्हें मुनाफा बहुत थोड़ा होता था। उनके पास ही चिड़िया सब्जी बेचा करती थी, जिसने अपना पक्का घर भी बना लिया था और वो कौवों से ज्यादा अमीर थी। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ बर्गर बना बना कर। ना जाने हमारे हालात कब बदलेंगे। जो कमाते हैं वो खर्चा हो जाता है। क्या करें गोरी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। चिकन को ही देख लो, पूरे 10 रुपए किलो हो गया है चिकन। कालू जी, बड़ा खर्चा चिकन का ही होता है। अगर किसी तरह चिकन फ्री मिल जाए तो हमारे बिजनेस में बचत ही बचत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि चिकन फ्री में मिल जाए? कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। गोरी बात कर ही रही थी कि वहाँ तोता आ जाता है। एक बर्गर दो कालू, मिर्ची थोड़ी ज्यादा डालना। फिर कालू कौवा तोते को एक बर्गर दे देता है, जिसे लेकर तोता चला जाता है। चल कालू, घर चलें। घर जाकर मैं तुम्हें अपना उपाय बताऊंगी, जिससे हमें बचत ही बचत होगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर को चले जाते हैं। रात हो जाती है। गोरी और कालू बैठे हुए थे जब गोरी कालू से कहती है, कालू जी, नदी में मेंढक बहुत हैं। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनो, क्यों ना हम चिकन की जगह मेंढक डाल दिया करें बर्गर में, किसी को क्या पता चलेगा। गोरी, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत पिटाई होगी। किसी को क्या पता चलेगा, मैं नदी से मेंढक पकड़कर ले आया करूंगी और फिर घर बैठकर हम उनका कीमा बना लिया करेंगे। गोरी, अगर ऐसे हो जाए तो फिर बचत ही बचत होगी। मैं अभी जाती हूँ, रात है, कोई देख भी नहीं रहा और मैं नदी से 2-4 बड़े बड़े
मेंढक पकड़ कर लाती हूँ। फिर गोरी घर से निकल जाती है। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही दूर गोरी को दो बड़े बड़े मेंढक दिख जाते हैं, जिन्हें गोरी बहुत आसानी से पकड़ लेती है। अब खाएंगे पक्षी चिकन बर्गर की जगह मेंढक बर्गर और हमें होगा दुगना मुनाफा। गोरी घर चली जाती है। दूसरे रोज गोरी और कालू मेंढक वाले बर्गर बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। कालू जी, किसी को क्या पता चलेगा? देखने में तो पता ही नहीं चल रहा कि ये मेंढक बर्गर है या चिकन बर्गर। अब हम जल्दी ही बड़ा घर बना लेंगे। कबूतर भी उड़ते उड़ते वहाँ आता है। कालू, एक बर्गर मेरी पत्नी के लिए पैक कर दो और एक मुझे दो, मैं यही खाऊंगा। फिर गोरी कबूतर को एक मेंढक बर्गर प्लेट में रखकर देती है, जिसे कबूतर मजे मजे से खाना शुरू करता है। आज बर्गर का स्वाद थोड़ा सा अलग लग रहा है। क्या हुआ? अच्छा नहीं है बर्गर? अच्छा तो है, बस ठीक है। फिर कबूतर अपनी पत्नी के लिए बर्गर लेकर चला जाता है। गोरी और कालू शाम तक काम करते हैं। कालू, पैसे तो गिनो, कितने हो गए हैं? गोरी, जितने भी हैं सारा मुनाफा ही है। अब कौन सा हमें चिकन लेने की चिंता है। शाम तक काम करने के बाद गोरी और कालू घर वापस चले जाते हैं। कालू जी, मैं नदी पर जा रही हूँ, मैं मेंढक पकड़कर ले आती हूँ और तुम मेरे आने तक भोजन तैयार करो। गोरी, ये थोड़े से चावल लेती जाओ, ये चावल नदी में गिरा देना। मेंढक चावल खाकर मोटे ताजा हो जाएंगे। फिर गोरी कौवी चावल लेकर नदी पर चली जाती है। गोरी नदी में चावल गिरा रही थी कि कबूतर उसे देख लेता है। वो गोरी के पास आता है। गोरी, नदी में चावल क्यों गिरा रही हो? कबूतर, आजकल धंधा अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं नदी के जीव जंतु को भोजन देने आई थी। कबूतर हैरान हो जाता है कि गोरी इतना अच्छा काम कैसे कर सकती है। फिर कबूतर वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। गोरी 3 बड़े मेंढक पकड़ती है और घर के लिए उड़ती है। ये मेंढक क्या करेगी गोरी? कबूतर भी गोरी के पीछे पीछे उड़ता है। वो जाकर खिड़की में बैठ जाता है। गोरी, मैं मेंढक का कीमा अभी बना लेता हूँ। सुबह सुबह मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती है। कालू जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम बाकी का काम करो और मैं सो रही हूँ। गोरी, चिकन बर्गर और मेंढक बर्गर में फर्क का पता भी नहीं चला पक्षियों को। कबूतर सब सुन रहा था। शी, गंदे कौवे, उन्होंने मुझे भी कल मेंढक बर्गर ही खिलाया होगा। इन्हें मैं कल देखता हूँ। फिर दूसरे रोज जब कालू और गोरी दुकान लगा लेते हैं, तो चिड़िया, कबूतर, तोता और चील उनके पास आते हैं। कबूतर फूड इंस्पेक्टर को भी साथ लेकर आता है। हम सब आज बर्गर खाने आए हैं, जल्दी जल्दी सबके लिए बर्गर बनाओ। कालू जी, मुझे तो कुछ दाल में काला काला लग रहा है, ये सारे पक्षी एक साथ कैसे? अब पहले तुम दोनों एक एक बर्गर खाओ, हम बाद में खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो भूख नहीं है। भूख नहीं है? जा तुम मेंढक बर्गर खाना नहीं चाहती हो। ऐसे कहते हुए सब पक्षी मिलकर गोरी और कालू की पिटाई करते हैं और फूड इंस्पेक्टर उन्हें पकड़कर ले जाता है। कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है।